Electrostatics. We start with Gauss's law. See, what is the funda of Gauss's law? If you know what is flux, flux is number of lines passing through a given area, right? E dot A, or we define it as integration of E dot dA. This formula is used when electric field is constant across an area. Okay, and this formula is used when electric field is variable across an area, isn't it? And Gauss's law tells us that let's say if I imagine a closed surface, and if I have a charge outside the closed surface, so what will happen? Number of lines entering the closed surface and number of lines coming out of the closed surface will be same, isn't it? The flux contribution by a charge outside a closed surface is zero, isn't it? Okay, if this charge happens to be inside the closed surface, so obviously it will contribute outward flux, isn't it? So we say that, or rather Gauss say that, Gauss law says that charges inside the closed surface will contribute for flux and charges outside the closed surface will not contribute. So we say, formula क्या है देखो, it is flux in a closed surface is equal to charge enclosed, charge inside the closed surface upon epsilon naught. ये है अपना Gauss's law, and we know that what is the formula of flux? It is integration of E dot dA. That's the formula. But we are doing this integration across a closed surface, right? So we put a circular or loop integration to indicate that it's a closed surface. This is a Gauss's law. Flux through a closed surface is integration of E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught. And you should understand this is integration of E dot dA, right? It will be E dA cos theta, where theta is angle between electric field vector and area vector. It is angled in vectors, okay? Theta is angled in area vector and electric field vector. Huh? Area vector is, you know that, right? Area vector is always perpendicular to surface, isn't it? And for a closed surface, we always take the outward normal. We always take this. If I take a dA here, it will be outward normal only. We don't take the inward normal. Okay? Okay? So we'll use this. And what is the use of Gauss's law? Gauss's law is used to find electric field. है ना? Or also we must know one more thing. कि when you are calculating flux, the flux contribution will happen only because of enclosed charges. But the electric field found from Gauss's law is due to all charges in vicinity. So electric field is basically net electric field. Okay. So on the right hand side, left hand side, the electric field obtained is net electric field. However, while calculating this net electric field, we consider only the enclosed charges. That you should do, है ना? यहाँ पे enclosed charge ही लिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि electric field सिर्फ enclosed से आ रहा है. Electric field सभी से आ रहा है, मतलब all charges, whether it's inside the surface or outside the surface. Is it making sense? Okay, ठीक है. And so we need this also. Area vector का भी discuss ना. It is always surface को perpendicular. One more thing you should know: if you have positive charge Q and they give us a point, so electric field due to positive charge is always away from the charge like this. And if you have a negative charge and a point is given to us and they ask electric field direction, it will be always towards the charge. Okay, so electric field vector for a positive is away, for negative it's towards. So these things we need because we need angle between E and D later. ठीक है, चलो फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं. क्या है फर्स्ट डेरिवेशन? आई थिंक इट्स E due to hollow conducting or non-conducting sphere. अब इसमें क्या दिया है देखो, they have given us, we have a sphere of radius r and is charged by charge q, and they are expecting us to find electric field, let's say at a distance small r, let's say at this point P. Point P पे चाहिए कि electric field कितना होगा. Find electric field at this point. Okay, somewhere outside. So you must know that in order to apply Gauss's law, first step क्या, you have to assume a closed surface. So I'm assuming a sphere. So this is actually my Gaussian surface, or we can say Gaussian sphere. फिर ये assume sphere लिया, जहाँ पे हमको field चाहिए उस पे ही हमने
एक surface imagine कर लिया and that surface is Gaussian surface. And now for this surface we will draw two things. First we will take a small area dA on this. I take a very small area dA, and dA is outward normal. The direction of dA will be like this. This is dA vector. Okay. And for this dA vector, if I have to draw electric field, कैसे बनेगा देखो? Electric field is always like this. Positive charge है, so it will be like this. If I have to draw electric field at any point, it will always go outwards. Positive के लिए बाहर की तरफ जाएगा. So you look at this electric field and look at this area vector. They are in the same direction. So we can say that angle between them is 0. ठीक है? This is the diagram. Now apply कर सकते हैं. We can say according to Gauss law, the relation is very simple. According to Gauss law, integration of E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught, and that is integration of E dA cos theta is equal to Q enclosed upon epsilon naught. Integration of E dA cos 01 is equal to enclosed charge. So this yellow surface contains the entire charge Q. लिख सकते हैं Q upon epsilon naught. ठीक है? Electric field will be constant everywhere because all points on this dA, whether yellow surface से कोई point ले लो, whether I take this point, P or whatever, any point on this surface, all points are equidistant from the sphere, right? Electric field will be constant. We can take it out. Integration of dA is equal to Q upon epsilon naught. What is integration of dA? If I integrate all the dAs, I'll get the surface area of the Gaussian sphere, right? Which will be 4 pi small r square. ठीक है? तो लिखेंगे 4 pi small r square is equal to Q upon epsilon naught. Rearrange these terms, you'll get E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. That's the formula. Okay. ठीक है? अभी कभी कभी क्या करते हैं, they ask this in MCQ. Okay, they will ask you to express this formula in terms of surface charge density. In terms of surface charge density. Surface charge density. What is surface charge density? Okay, sigma. It is Q upon A, है ना? Sigma will be equal to Q upon area. क्या लेंगे? Charge is distributed on the actual sphere, right? The white one, isn't it? तो 4 pi capital R square आ जाएगा, right? तो therefore we can say Q का value would be sigma 4 pi capital R square. अभी ये वाला जो value है, इसको if I substitute here, I think you will get E का value as sigma upon epsilon naught capital R square upon R square. So this is in terms of sigma. ठीक है? It's both the formulas are fine. Mostly MCQ के लिए ये important है. बाकी derivation पूछा तो यहाँ तक ही we have to stop. What are the steps? ठीक है? Wherever they have asked you find electric field, at that point you draw a Gaussian surface. On your Gaussian surface, imagine small area dA. Draw dA vector and E vector for that to find the angle, and then use Gauss's law. जितना surface है उतना dA आ जाएगा. यहाँ पे there is only one single sphere, spherical surface, so that's why we have 1 dA. Okay. Look at the next one. Next one देखो. We have given infinite wire बोल सकते हैं. Charged wire. Charge infinite wire. Yeah, you can say cylinder also. Both are fine. Okay, cylinder बोला या charged wire बोला एक ही बात है. Let's say we have a cylinder like this. It's infinite and it's charged. And let's say they ask us, so what is known? We know the linear charge density of this cylinder. Okay, it is charge distributed per length. What is lambda? It's coulomb per meter. So lambda coulomb per meter is the charge distributed on the wire or cylinder, we can say thin cylinder. Okay, and let's say they ask us to find electric field at this point. Let's say this is point P where I want electric field. Point P. Point P का distance is given as small r. Small r दिया है, बोला यहाँ पे electric field निकालो. So what is the step? First step is to imagine a Gaussian surface at this point. So what I'll do is I'll imagine a cylinder. ठीक है ऐसे. This is my Gaussian surface. First step. Now you should understand, for a cylindrical surface, you have one curved surface and two flat surfaces.
तो लेट्स नेम देम. इसको ये फ्लैट सरफेस 1, दिस इज कर्व्ड सरफेस 2, फ्लैट सरफेस 3. Okay, and then we have to draw dA for all of them. Okay, so for a flat surface, if I imagine a dA here, it will be outward normal like this. For a curved surface, if I imagine a dA here, it will be outward normal like this. And again for this we have normal like this. Surface 3. तो dA का डायरेक्शन बना दिया हमने. और what is electric field direction? Electric field will be away from the charge. It will be like this. In this case, it will be like this. This case it will be like this. Okay, these are electric field, है ना. तो actually में electric field if you see it looks like this. If it's a positive cylinder or wire, electric field will be like this outwards. Okay, and if it's a negative one, तो electric field ऐसा होगा, inwards. Lines will come inside. Like this for negative, है ना. नेगेटिव वायर है तो चार लाइन्स विल कम इनसाइड द वायर एंड टुवर्ड्स इट एक्चुअली, एंड फॉर दिस गाय इट विल बी आउटसाइड. पॉजिटिव इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज. ओके, ठीक है. तो व्हाट कैन वी कंक्लूड? यहाँ पे एंगल कितना है ई और डी ए में? सरफेस 3 के लिए 90 एंड सरफेस 2 में 0. Surface 3 में again 90. What is cos 90? 0. Which means surface 1 and surface 3 में E dot D का value will be 0 only, right? So if I apply Gauss's law, according to Gauss's law, integration of E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught. Okay. अब ये Q enclosed भी निकालना पड़ेगा ना. लेट्स एज्यूम दैट कि ये जो सिलेंडर हमने बनाया है उसका लेंथ L ले लो, L लेंथ. तो व्हाट इज द चार्ज इन दिस L लेंथ? वी नो दैट व्हाट इज लैम्डा डेफिनेशन. लैम्डा इज डिफाइंड एज चार्ज पर लेंथ ना. तो देयरफॉर चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा L. तो लैम्डा L इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. एनक्लोज्ड चार्ज विल बी लैम्डा L. तो यहाँ लिख देते हैं लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड यहाँ पे वी हैव टू इंटीग्रेट 3 सरफेस के लिए. ओके, तो दिस इज सरफेस 1 E dA cos theta plus surface 2 E dA cos theta surface 2, and then we have plus surface 3 E dA cos theta. Okay, 3 integration. 1 and 3 will be 0 because theta is 90. Okay, यहाँ पे cos theta is 0 तो cos 0 will be 1. So you have integration E dA surface 2 is equal to lambda L upon epsilon naught. Make sense? Okay, and E is constant will go out. What is the value of dA? dA is curved surface area of the Gaussian cylinder, right? Okay, और curved surface area सिर्फ चाहिए इसका कितना होगा? 2 pi small r l. ये small r चाहिए, ठीक है. तो 2 pi small r l is equal to lambda L upon epsilon naught. LL bye you get. Rearrange the term, you will get E का value as 1 upon 2 pi epsilon naught lambda by r. ठीक है. इफ यू कंपेयर द प्रीवियस फॉर्मूला, यहाँ पे 2 pi epsilon naught है, 4 pi नहीं है. ओके, और वहाँ पे q upon r स्क्वायर था, यहाँ पे लैम्डा है. ओके, चार्ज डेंसिटी है, वहाँ पे चार्ज था, डिफरेंस है. ओके, और r स्क्वायर भी नहीं है, इट इज r. तो इस थोड़ा ध्यान रखो मतलब इसका. ठीक है, तो इजी फॉर्मूला है, कुछ खास नहीं. व्हाट नेक्स्ट? I think it's infinite plate, is it? Okay. Infinite plate, charge infinite plate. अभी ये भी सिमिलर डेरिवेशन ही है. इसमें देखो क्या दिया है कि if this is a plate, it's a big huge plate. Infinite का मतलब काफी बड़ा है. Okay. और इसका सिग्मा पता है हमको. सिग्मा इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर एरिया. तो ऐसा कोई प्लेट है. अब समझो इसके पास में यहाँ पे कहीं फील्ड निकालना है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इमेजिन अ क्लोज सरफेस. तो हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर इमेजिन किया जो थ्रू एंड थ्रू पास हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ. तो यहाँ पे फील्ड चाहिए अगर, तो यहाँ पे ऐसे सिलेंडर बना लिया विच इज पासिंग थ्रू एंड थ्रू पास हो रहा है. ओके, एंड लेट्स एज्यूम दैट कि ये जो फ्लैट सरफेस है उसका एरिया ए है. एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस इज ए. ये एरिया ए ले लेते हैं. ओके, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड जो प्लेट का ये वाला पार्ट इज
only this much part is getting cut, है ना, मतलब यहाँ is included in that cylinder. प्लेट का जो ये वाला पार्ट है that will be in the cylinder, right? Okay, only A part will be in the cylinder. And if I have to find कि what is the charge enclosed in this yellow cylinder, तो this is the area which is covered, right? तो charge enclosed चाहिए मुझे यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं. Charge enclosed will be equal to simply sigma is q upon a, right? So q will be sigma into a, where a is this area, है ना. ओके ये मिल गया हमको चार्ज एनक्लोज्ड. अभी क्या करना है हमको, dA और dA बनाना. तो यहाँ पे if I make a dA, it will be obviously outward normal. If I make a dA on the curved surface, it will be perpendicular like this, outward normal. If I make a dA here, it will be like this. Okay, and if I make electric field vector, positive charge है, it will be outwards, so this will be like this. यहाँ पे electric field ऐसे हो जाएगा, है ना. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइक दिस, ऐसे बाहर की तरफ. यहाँ पे इट विल लाइक दिस. तो व्हाट आर द एंगल्स? फॉर द फ्लैट सरफेस एंगल विल बी 0. फॉर द कर्व्ड सरफेस एंगल विल बी 90. ठीक है. I can say that if I apply Gauss's law, integration of E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught. This will be 3 integrations, right? For first surface, which is this is the second surface, curved surface, this is third surface. Okay, तो लिखेंगे first के लिए लिखेंगे E dA cos theta plus second surface के लिए we can say E dA cos theta again plus third surface के लिए we can say E dA cos theta is equal to Q enclosed is sigma A upon epsilon naught. अभी ये वाला cancel because of 90, है ना, correct. And you should know that कि this is also EDA and this is also EDA, right? Symmetric shapes से सब कुछ same है, तो you can say it is 2EDA and cos 0 is 1 for both of them is equal to sigma A upon epsilon naught. 2 E will go out. What is integration of dA? If I integrate all the dAs, I'll get surface area of this flat surface which we have assumed to be A. ठीक है, तो यहाँ पे सीधा A लिख सकते हैं upon epsilon naught A bye bye. Here is the term, you will get E का value as sigma upon 2 epsilon naught. हो गया, है ना. These are 3 derivations of Gauss's law, I think, which is mostly sphere का ही पूछते तुमको या सिलेंडर का mostly. Okay. Charge enclosed. ठीक है. What next? Potential energy. Any questions here? समझ में थीम सबका सेम ही है, उसमें से एक डायरेक्शन पूछ लेते हैं, लोग काफी पॉपुलर है. ठीक है, लेट्स गो फॉर पोटेंशियल एनर्जी. सेकंड वन इज दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी और वी कैन से इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस. अभी थोड़ा इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा. देखो, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यू कैन आल्सो कॉल इसको इंटरैक्शन एनर्जी. ओके, सी द फंडा हियर इज, कैसे निकालेंगे देखो. पहले तो इसमें क्या करते हैं, ये इमेजिन दिस इज चार्ज Q1 and this is charge Q2. Let's assume that the initial distance between them is some R1. Okay, और इसको R1 से हम R2 लेके आ रहे हैं, that is the final distance. So the first step would be to find the work done and then we will calculate potential energy. Work done is stored in the form of potential energy, right? तो पहला काम होगा वर्क डन होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी करेंगे. तो ये इज द इनिशियल पोजीशन, आई कैन से दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ Q2. Q1 is fixed and this is the final position of Q2 फाइनल पोजीशन. अभी यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, पहले वो निकालेंगे. फाइनल पोजीशन. Okay, how do I find this work? We'll assume that, let's assume कि currently at some intermediate position R पे है वो. Okay, and R से dr जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है वो निकालेंगे पहले. Okay, तो what is the force between them, these two particles when it's at a distance R? Force between Q1 Q2 at R would be F is equal to K Q1 Q2 by R ना, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. इसको थोड़ा और dr लेके आएंगे तो व्हाट इज द वर्क डन देन.
इससे वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट will be dw and that will be f dot dr, isn't it? And force is repulsive, so it will be f dr cos 180, है ना? तो minus f dr हो जाएगा, which will be minus 1/4 पे epsilon naught q1 q2 upon r square dr. Correct है? Okay, and you should know that कि by definition of potential energy कि work done by conservative force is equal to minus delta u, ऐसे भी है ना हम लोग, ओके, isn't it? तो I can say that यहाँ पे u delta u मतलब क्या है, change in potential energy, right? तो what will be that? यहाँ पे initial position क्या है r1, final position क्या है r2, तो change will be final minus initial, right? है ना, बट यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यू से कि दिस विल बी एक्चुअली u एट r1 माइनस u एट r2, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. इन दिस केस कंजर्वेटिव फोर्स मींस आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट. u एट r1, देखिए व्हाट इज दिस इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, उसका नेगेटिव कर दिया तो u इनिशियल माइनस u फाइनल, तो u एट इनिशियल पोजीशन माइनस u एट फाइनल पोजीशन शुड बी इक्वल टू वर्क डन. And this work done is nothing but integration of this work done, है ना, समझ में आएगा. स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करेंगे, राइट. तो करें, चलो आ जाओ करते हैं इसको. वी कैन से u एट r1 माइनस u एट r2 is equal to work done, that is equal to integration of dw, and that will be integration of 1/4 pi epsilon naught, okay, minus q1 q2 upon r square, and लिमिट्स क्या होगा, इनिशियल पोजीशन क्या है हमारा dr, दिस विल बी r1 से r2. अभी क्या आएगा बताओ इसका आंसर, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट विल गो आउट, q1 q2 विल गो आउट. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर dr, माइनस 1/r, ठीक है. दिस इज गोइंग फ्रॉम r1 टू r2, ओके. पुट द लिमिट्स, यू विल गेट 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 1/r2 माइनस 1/r1, करेक्ट. This will be u r1 minus u r2. यहाँ तक समझ में आएगा, ओके. नाउ सी यू शुड अंडरस्टैंड कि चार्जेस के केसेस में क्या होता है कि वी टेक, जैसे ये चार्ज q1 है और ये चार्ज q2 है, इनके बीच डिस्टेंस r है अगर, ओके, तो ऑब्वियसली दे हैव पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिस्टम, ओके, बिकॉज इफ यू लीव देम दे विल एक्वायर काइनेटिक एनर्जी इमीडिएटली, दे विल रिपेल, isn't it? Okay, so what we assume here is कि these charges are not here by default, okay, somebody has got them from infinity to current position. समझ में आएगा, और उसमें जो वर्क हुआ है वही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड है, ओके. तो इसका जीरो पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, हम बोलते हैं जीरो पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, जीरो पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, दैट इज एट इन्फिनिटी. इट मेक्स सेंस बिकॉज 1/r विल बी जीरो एट दैट. तो वी कैन से कि इन्फिनिटी से इसको यहाँ पे r पे लाया, तो वी कैन से दैट r1 जो है वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से इनिशियल पोजीशन वाज इन्फिनिटी एंड फाइनल पोजीशन इज r, तो r2 विल बी r. ऐसे इन्फिनिटी से अगर r पे लेकर आए, जितना वर्क हुआ है वही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड है. सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा. तो विल गेट u r1, ठीक है, सी u r1, तो विल बी u इन्फिनिटी माइनस u r2 विच इज u r is equal to 1/4 pi epsilon naught, है ना, q1 q2 into this is r2 minus r1, right. तो यहाँ पे लिखेंगे 1/r minus 1/infinity, and we know that u infinity is 0, okay. क्या है आंसर, तो u at r will be equal to minus 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है, ओके. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r, ठीक है. दैट इज द डेफिनेशन. यही डेरिवेशन में एक्चुअली ये दिस डेरिवेशन नंबर 1. दे कैन आल्सो आस्क यू, कभी कभी यही डायग्राम को यूज करके हम वो भी कर सकते हैं कि दे कैन आस्क यू कि
डिराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो कैसे करते हैं, वी से दैट कि वर्क डन इज माइनस एफ डी आर, राइट, है ना। और बाय डेफिनेशन वर्क डन इज ऑल्सो क्यू dv, है ना. But there is change in potential into charge. Okay, if you equate them, you get the relation. Okay, F dr ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं हम लोग. Okay, we just say कि दो चार्जेस रखे हैं और एक चार्ज का मूव कर रहा है. ओके, तो F dr इज इक्वल टू बाई डिस्टेंस dr. इसको क्या लिखेंगे, माइनस F dr इज इक्वल टू क्यू dv. सही है ना. और F को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट F एस QE, Q dv, Q cancel, you have E is equal to minus dE by dr और dE by dx also you can write, both are fine. डेरिवेशन ये नहीं पूछते बट मैंने बता दिया थोड़ा सा, मोस्टली दे लास्ट के न्यूमेरिकल्स. ओके, एंड दिस विल बी मोर इंपॉर्टेंट व्हेन वी डू कैपेसिटर्स, बिकॉज कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अपॉन द डिस्टेंस इन द प्लेट्स. तो उसके लिए चाहिए था, इसलिए लिख दिया. ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, डाइपोल आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है. चलो डाइपोल करते हैं, आ जाओ. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग किया है इन्होंने. दे हैव जस्ट, तो अर्लियर डेरिवेशन वाज डिफरेंट इन एचएससी बुक, बट दे हैव नाउ कॉपीड फ्रॉम, थोड़ा एनसीईआरटी से इंस्पिरेशन ले लिया. ओके, तो इट इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल के बारे में क्या पता है हमको. व्हाट इज डाइपोल? When you have two equal opposite charges separated by some distance, we call it dipole, right? Very small distance, isn't it? Okay, अब ये जो distance है इसको क्या लेते हैं हम लोग, इसको भी लेते हैं हम 2L लेते हैं, right? है ना. Why? Because dipole में we define two lines. Okay, दो लाइन डिफाइन करते हैं. एक लाइन को बोलते हैं हम एक्सिस, इस लाइन को एक्सिस बोलेंगे, राइट, और ये लाइन को बोलते हैं हम लोग इक्वेटर. तो 2L इसलिए लिया है बिकॉज ये LL हो जाएगा तो इक्वेटर कैलकुलेशन में थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा ये, है ना. ओके, एंड यू शुड नो दैट कि अभी एक्सिस पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इक्वेटर पे निकाल सकते हैं. एचएससी ने क्या किया है कि दे हैव सेड वी विल फाइंड फॉर रैंडम पॉइंट. ओके, लेट्स से इफ आई हैव अ चार्ज माइनस q हियर एंड प्लस q हियर, आई विल टेक अ पॉइंट P, लेट्स से यहाँ पे, जो एक्सिस पे भी नहीं है और इक्वेटर पे भी नहीं है. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज अगर r, स्केल यूज करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस है r है, तो ये पॉइंट है जिसका डिस्टेंस r है सेंटर से एंड एंगल इज थीटा. तो नीदर ऑन एक्सिस नॉर इक्वेटर, बट इफ आई सब्स्टिट्यूट थीटा इक्वल टू 0 इट विल बी एक्सियल लाइन, थीटा इक्वल टू 90 विल बी इक्वेटोरियल लाइन, है ना. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग वी शुड नो. ओके, कि फॉर डाइपोल वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, इजंट इट, वेक्टर p. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट? चार्ज इनटू डिस्टेंस इनटू द चार्जेस, इजंट इट. डाइपोल मोमेंट स्केलर और वेक्टर. वेक्टर डायरेक्शन क्या है इसका, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको ऐसे मारेंगे इस तरफ, p वेक्टर भी पॉइंट फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज. तो ये सब चीज थोड़ा पता होना चाहिए. ओके, पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. फाइन, ठीक है, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट. तो वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज l, ये भी l है, और यहाँ पे चाहिए पोटेंशियल. ओके, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है भाई? अभी व्हाट इज द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज, वो भी चाहिए रहेगा. This is one thing that we should know about dipoles. Second thing we should know about what is electric potential का formula. Electric potential due to point charge का formula क्या है? If you have point charge Q at a distance R, अगर potential चाहिए तो V का formula होता है K, मतलब 1/4 pi epsilon naught Q upon R, isn't it? And also you should know that कि signs are important here. Positive charges से KQ by R लिखा है ना, ठीक है. नेगेटिव चार्ज होगा तो सेम क्वेश्चन अगर नेगेटिव लिए पूछेगा तो माइनस लिखेंगे, v विल बी 1/4 pi epsilon naught माइनस q अपॉन r हो जाएगा, है ना. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगा. देखो, तो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट p, ये पॉइंट p पे चाहिए मुझे अगर, तो आई नीड दीज टू डिस्टेंसेस. मुझे ये दो डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा एंड ये डिस्टेंस चाहिए होगा. Let's call this as r1,
बोल देते हैं इसको R2 बोलते हैं। तो वी नीड R1 R2 टू बेसिकली गेट द आंसर, है ना, बिकॉज इसका पोटेंशियल के लिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चाहिए, राइट। तो देखो कैसे निकाला इसने, वी नो दैट दिस इज R, ये ध्यान रखो कि ये R है, ये वाला बीच वाला जो है वो R है, ओके। तो इस लाइन को एक्सटेंड करो, थोड़ा ज्योमेट्री करना पड़ेगा, लेट्स एक्सटेंड दिस लाइन, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया हमने, ओके, एंड देन यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉप करो यहां पर, you draw a perpendicular like this and then also यहाँ से भी ड्रॉप करो perpendicular like this, लग रहा है ना perpendicular, this is 90, this is 90, ओके। तो चाहिए तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q upon R1, sorry this is R2, पॉजिटिव के लिए R2 डिस्टेंस है, राइट, एंड V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी 1/4 pi epsilon naught Q upon R1, है ना। पर R1 R2 नहीं पता चलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो निकालते देखो कैसे। तो लुक एट दिस ट्राइंगल वेरी केयरफुली, ये ट्राइंगल देखो, उसके पहले देखो यहाँ पर कैन वी से दैट, तो अलग कर पहले थे, ये अगर L है तो टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्टेंस हियर, सी ये जो डिस्टेंस है ये वाला, क्या ये L cos थीटा है ना, L टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, समझ में आया क्या। ऐसे ही अवे फ्रॉम द एंगल विल बी sin कंपोनेंट, दैट मींस दिस डिस्टेंस इज येलो लाइन शुड बी L sin थीटा, समझ में आया क्या। L के दो कंपोनेंट, टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट और अवे फ्रॉम द एंगल sin कंपोनेंट, समझ में आया, ठीक है। और यू कैन यूज ट्रायंगल आल्सो टू गेट द आंसर। सिमिलरली इफ दिस इज थीटा, ऐसा बोल सकते हैं कि ये थीटा हो जाएगा, है ना। अभी देखो ये L है, ठीक है ना, देखो ये वाला ये L है, ये थीटा है, करेक्ट, और ये तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर, लुक एट दिस ट्रायंगल, दिस इज L, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड, okay, this is theta, again towards the angle, this will be L cos theta and away from the angle sin, right, again, so I can say this distance here should be L cos theta, correct, इसको थोड़ा हटाते हैं साइड में, and this distance here will be L sin theta. Any questions in this geometry part? क्योंकि अब ज्योमेट्री खेलना है बस इसमें, ओके, यहाँ तक समझ में आया। देख लो अभी क्या देखो क्या क्या दिया है, आई जस्ट क्विकली रिपीट दिस, ये हमारा दिस वाज द डाइपोल, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, बोला है कि डाइपोल से दूर r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ओके, एट एन एंगल थीटा, यहाँ पे निकालना है तुमको पोटेंशियल, फिर हमने बोला पोटेंशियल निकालना है तो दो लोग पोटेंशियल देंगे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव का पोटेंशियल विल बी दिस डिस्टेंस R1 और दिस डिस्टेंस R2। अब ये R1 R2 निकालने के लिए इतना ज्योमेट्री किया हमने, ठीक है। फिर क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे, यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ परपेंडिकुलर, देन वी सेड कि दिस इज L cos थीटा, दिस इज आल्सो L cos थीटा, दिस वन इज L sin, सॉरी दिस वन इज L sin एंड दिस वन इज L sin, ठीक है। आ जाओ, तो अब जो कैलकुलेशन मैं R1 के लिए करूँगा वैसे कुछ R2 के लिए भी जाएगा, तो जस्ट ड्रॉ, सर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैं द गोल इज टू फाइंड 1/R1 एक्चुअली, नॉट R1, ओके, एंड यहाँ पे भी 1/R2 चाहिए, ओके, तो मेरे तो यहाँ पे 1/R1 के लिए मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1/R2 के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, ओके। तो पहले R1 को देखो, लुक एट दिस ट्राइंगल, ऐसा है ये 90, ये L sin थीटा है, ये अपना R1 है, ओके, एंड दिस डिस्टेंस हियर, ये look at this triangle, this one, the bigger one, what is this distance, R plus L cos theta, do you agree, समझ में आ रहा है क्या। देखो ये डिस्टेंस तो R है ना, उसमें L cos theta ऐड करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा, समझ में आया, ठीक है। सेम यहाँ पे आ जाओ, I'll use the smaller triangle, perpendicular this
कि दिस इज R2, थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, ओके, दिस इज R2, ये है L साइन, एंड नाउ आई नीड दिस मच लेंथ ओनली, दिस मच, which is basically R minus the L cos. This is R minus L cos theta. समझ रहा है क्या? ज्योमेट्री समझ में आया? एक बार ये डायग्राम समझ में आया, बाकी ऑल कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा. एनी क्वेश्चन टिल दिस स्टेप? ठीक है, अच्छा फाइन, लेट्स कंटिन्यू दिस. तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओके, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ठीक है, तो R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बेस स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इट विल बी R प्लस एल कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एल साइन थीटा का स्क्वायर मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. करेक्ट, एल स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL कॉस का लिख सकते हैं इसको. समझ आया? ठीक है, सेम यहाँ पे R2 को क्या लिखेंगे, R2 विल बी, R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये प्लस के माइनस आएगा तो R माइनस एल कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एल साइन थीटा का स्क्वायर. यू नो द आंसर, व्हाट इज द आंसर यू गेट, सेम एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट यहाँ पे प्लस के पे माइनस आएगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट सिंपली माइनस 2RL कॉस थीटा. ठीक है, ओके. नाउ देखो ये लोग क्या करने वाले हैं. ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसमें से आर स्क्वायर बाहर निकालूंगा, तो व्हाट विल आई गेट, आई गेट 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा, देखो 2L कॉस थीटा अपॉन आर. सी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर विल गेट द सेम स्टफ. ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नो दैट इट इज अ शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है कि डाइपोल का जो डिस्टेंस है बिटवीन द डाइपोल्स, दिस डिस्टेंस 2L, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ या डिस्टेंस एट विच यू आर फाइंडिंग द पोटेंशियल. तो ये R बहुत बड़ा है और ये 2L बहुत छोटा है, समझा? तो यू कैन से 2L इज मच लेस देन R. दिस इज देयर, वी कैन अज्यूम दिस बिकॉज वी आर वर्किंग विद शॉर्ट डाइपोल्स. इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट डाइपोल ही होता है, ओके. तो वो assumption करेंगे, L इज मच लेस देन R, दिस वैल्यू इज इफेक्टिवली इग्नोर्ड. समझा? रीजन क्या है, L इज मच लेस देन R. क्या मिलेगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2L कॉस थीटा अपॉन R. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, क्या ये चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं? क्या मिलेगा, तो सिमिलरली आई कैन से व्हाट विल गेट, विल गेट R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू सेम थिंग, R स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2L कॉस थीटा अपॉन R. चमका? समझ में आया क्या? ठीक है, मुझे R का वैल्यू चाहिए कि उसका रेसिप्रोकल चाहिए? रेसिप्रोकल. अभी रूट निकाल के रेसिप्रोकल कर दो, तो विल गेट R का वैल्यू, R1 विल बी इक्वल टू R 1 प्लस 2L कॉस थीटा बाई R रेज़ टू 1/2. इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 अपॉन R1 विल बी R, सॉरी 1 अपॉन R इंटू 1 प्लस L 2L कॉस थीटा. क्या हो जाएगा, पावर विल बी माइनस. सेम इसमें भी सेम वर्क. सिमिलरली 1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू 1 माइनस 2L कॉस थीटा अपॉन R रेज़ टू माइनस हाफ. व्हाट विल आई डू नेक्स्ट? क्या है करने वाला मैं, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इजंट इट? ये तो बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है R. ठीक है, तो व्हाट इज बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, 1 प्लस माइनस A रेज़ टू N इज इक्वल 1 प्लस माइनस NA इफ A is much less than 1. ओके, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये पावर अंदर आ जाएगा, राइट? तो ये माइनस हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट? इफ आई टेक माइनस हाफ इनसाइड, व्हाट विल गेट? अगर यहाँ माइनस हाफ आ गया अगर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो वही करते हैं, प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे फाइनली मिल गया 1 अपॉन R1 इज 1 अपॉन R इंटू 1 माइनस L कॉस थीटा बाई R ना. सही है ना? देखो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, हाँ सब सही है एकदम. सिमिलरली कैसे 1 अपॉन R2 विल बी 1 अपॉन R 1 प्लस L कॉस थीटा अपॉन R.
ठीक है, ये पूरा मैथ्स है जो थोड़ा हिडन है मतलब डेरिवेशन में, एंड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। चलो, तो v ड्यू टू R1 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव, R1 एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है, R1 नेगेटिव चार्ज का ध्यान रखो। तो बेसिकली कैन से नेट डाइपोल नेट v विल बी इक्वल टू v ड्यू टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना, v ड्यू टू नेगेटिव प्लस v ड्यू टू पॉजिटिव, करेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस क्यू इंटू 1/R1 था, राइट, तो यू हैव 1/R इंटू 1 माइनस L cos थीटा अपॉन R प्लस दिस इज 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अगर R2 था तो यहाँ पे R इंटू 1 प्लस L cos थीटा अपॉन R, ठीक है, नेगेटिव साइन विल गो इनसाइड, ओके, तो L cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा, राइट, या ऐसे कर लो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट यू कैन टेक कॉमन, Q बाय R यू कैन टेक कॉमन, ओके, you will have -1 plus L cos theta upon R here and you can have +1 plus L cos theta upon R here, ठीक है, 1 बाय बाय, है ना, L cos theta 2 L cos theta, right, तो you will get finally 1/4 पे epsilon naught Q 2L cos theta upon R into R square, what is Q into 2L, P, है ना, तो मिला V is 1/4 पे epsilon naught P cos theta upon R square, भाई साहब ये है आंसर। इसमें भी शो ऑफ कर सकते हो, बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 इस एक्सिस, तो V at axis will be equal to what, 1/4 पे epsilon naught, है ना, P upon R square and theta equal to 90 is equator, so that will be V at equator will be, what is V cos 90, 0 ना, 0, जनरल पॉइंट के लिए सही है। नेक्स्ट इज डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें वी हैव एक्चुअली में 3 डेरिवेशंस, ओके, तो सी व्हाट इज गिवन टू अस, हम एक ही डायग्राम में सब बुला देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रखा है समझो, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, and in that field we have a dipole like this, okay, this is negative charge minus q, this is plus q, dipole points from negative to positive like this, okay, and electric field is E, ये E है, okay, angle between dipole moment which is P is like this, right, P का direction ऐसा होगा इस तरफ, and electric field is given to us, what is that angle, ये आएगा वो एंगल, करेक्ट, इसको ऐसे कर लेते, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा, ओके, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि डाइपोल पे वी हैव वन एंड इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव विल एक्सपीरियंस फोर्स along the direction of electric field, in the direction of, इस तरफ फोर्स लगेगा और नेगेटिव को पीछे की तरफ, ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इट विल बी लाइक अ कपल, तो डाइपोल विल रोटेट, तो फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट डेरिवेशन कैन बी कि टॉर्क ऑन डाइपोल, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है, या डेरिवेशन बोलो फॉर्मूला बोलो, तो उसमें देखो क्या करना है, वी हैव टू जस्ट ड्रॉ दिस टू फोर्सेस, दिस फोर्स विल बी टुवर्ड्स लाइक दिस, यहाँ पे होगा F विल बी इक्वल टू Q इंटू E, एंड दिस फोर्स विल बी ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, F विल बी इक्वल टू Q इंटू E अगेन, ठीक है, दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इफ यू लुक एट दिस डाइपोल वी हैव टू फोर्सेस लाइक दिस, okay, FF, and this distance is 2L and this angle here is theta. Now if you want to calculate torque due to a couple, okay, what is the formula, torque due to couple, it will be force into perpendicular distance between forces, okay, so force का value is QE, okay, and perpendicular distance means this distance you need, ये वाला, so this will be towards the angle cos component, away from the angle sin component, this will be 2L sin theta. So let's put the value to QE 2L sin theta. What is Q into 2L? P. So P sin theta. If you want the vector form, it is this P cross E. So torque का formula is PE sin theta. What is theta here? Angle between
डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? ओके, तो ये पहला डेरिवेशन हो गया। सेकेंड डेरिवेशन इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। तो इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है हमने, ओके, एंड डाइपोल वाज इनिशियली लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा था और इट वाज मेकिंग एन एंगल थीटा एंड देन वी वांट टू रोटेट दिस, ओके, इसको लिया और ऐसे कुछ। तो लेट्स से इनिशियल एंगल हियर इज सम थीटा 1, ये एंगल कुछ थीटा 1 है, दिस एंगल हियर इज थीटा 1 एंड देन फाइनल एंगल इज सम थीटा 2। यू हैव टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2। ये येलो लाइन इंडिकेट्स डाइपोल, ये वेक्टर पी है, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी इजी है। व्हाट इज रोटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला? वर्क डन will be integration of f dx for translation order, that will be integration of tau d theta. Theta is going from theta 1 to theta 2 and tau ka value we have just calculated is pe sin theta d theta theta 1 to theta 2. What is integration of sin theta? Minus cos theta. Value substitute करो फटाफट, लिमिट जानने के बाद it will simply pe, क्या आएगा भाई? cos theta 1 minus cos theta 2। काफी आसान डेरिवेशन है। तो इसमें ना there are two cases actually that you should know. Okay, case 1 is when the initial angle is 0 and final angle is some theta, and case 2 when initial angle is 90 and final angle is theta. तो 90 से थीटा पे लेके जा रहे हैं, केस 1 हो गया, और 0 से थीटा पे लेके जा रहे हैं, that is case 2. Okay, अगर 0 से थीटा ले जा रहे हैं तो what is work done? cos 0 is 1, right? Okay, so we'll get PE cos 0 1 minus cos theta मिल जाएगा। और अगर 90 से ले जा रहे हैं तो क्या मिलेगा? वर्क डन, ठीक है, cos 90 तो माइनस PE cos theta मिल जाएगा, राइट? समझ में आया क्या? ओके, तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे कैन आस्क यू वन मोर क्वेश्चन हियर। दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, मतलब सेम ही क्वेश्चन है कि ये डाइपोल एक एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें डाइपोल रखा हुआ है एट एंगल थीटा पे, बस दैट्स इट। बोला कि व्हाट इज द एनर्जी, व्हाई इट विल हैव एनर्जी, बिकॉज द मोमेंट यू लीव इट विल टर्न, राइट? तो इट एक्वायर्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो एट दिस पोजीशन थीटा इट हैज टू हैव सम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालते हैं? हमने अगेन वही किया, जीरो पोटेंशियल का डेफिनेशन करना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं इसमें कि जो लॉजिक हमने पीछे लगाया था फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, यहाँ भी बोलेंगे कि ये अपने आप ये एंगल पे नहीं आया है, कोई एजेंट है जिसको वो लेकर आया है उस एंगल पे, राइट? बट कहां से लेके आया, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। तो जीरो तुम किसको मान रहे हो? तो ऑब्वियसली वी टेक जीरो पोटेंशियल एज थीटा 90। समझ में आया क्या? तो वील एज्यूम दैट कि इट वाज टेकन फ्रॉम 90 डिग्रीज टू करंट एंगल थीटा, और ये ट्रांजिशन में जो वर्क हुआ है वही पोटेंशियल एनर्जी है, यू कैन से यू। समझ में आ रहा है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी वर्क डन इन डूइंग गोइंग फ्रॉम थीटा 1 90 टू थीटा 2 विच इज थीटा। ओके, तो क्या है ये तो पता है, हमने निकाला अभी क्या है, इट इज माइनस पी कॉस थीटा, या थोड़ा शो ऑफ करना है तो माइनस पी डॉट ई लिख सकते हो। समझ में आएगा? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पूछा है पर्टिकुलर एंगल, तो इट्स माइनस पी कॉस थीटा। ओके, बट इफ दे आस्क यू वर्क डन, तो यू सी कि फ्रॉम व्हिच एंगल टू व्हिच एंगल दे आर मूविंग, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, तो टॉर्क भी पूछ सकते हैं, वर्क डन पूछ सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा तुमको आना चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, आई थिंक यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला सब खत्म हो जाता है। ओके, वी कैन स्टार्ट विद कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर क्विकली समझ लेते हैं थोड़ा सा, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक स्टफ एंड देन वील डू डेरिवेशन आल्सो। व्हाट इज कैपेसिटर? It's a charge storing device, right? Okay, तो typically you have 2 parallel plates. We'll discuss this कि 2 parallel plate भी क्यों होता है, because ये theory question होता है हमारे पास। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है कैपेसिटर का, this is plus Q, this is minus Q, right? Okay, and capacity of any device is defined as charge stored per potential gained, Q up is equal to
C is equal to Q upon V, isn't it? यही फॉर्मूला है ना, ठीक है. ओके, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी? फैराड. तो ये 1 कूलम पर 1 वोल्ट. एंड यू विल सी दैट कि मोस्ट ऑफ सम्स में यू सी माइक्रोफैराड्स, है ना, हमेशा यही दिखेगा तुमको, क्योंकि 1 फैराड इज अ ह्यूज यूनिट. तो 10⁻⁶ मोस्टली सम्स में माइक्रोफैराड में सब कुछ दिया होगा. तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इफ इट इज रिक्वायर्ड. ओके फाइन. तो जिसमें एक चीज इसमें चार्ज स्टोर करने के लिए इसको यूज करते हैं. इट्स वेरी कॉमन डिवाइस. ओके, तो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो कि why capacitors have parallel plate structure. ठीक है. ओके, पैरेलल प्लेट स्ट्रक्चर. तो इसका रीजन क्या है? देखो, इसको ऐसे करते हैं. विल टेक 3 सिचुएशंस कि एक सिंगल प्लेट रखा है, फिर एक वी हैव 2 प्लेट्स. ओके, एंड अगेन वन मोर केस. इसका सिर्फ एक्सप्रेशन सुन लो, तुमको लिखना अपने 1 वर्ड्स में ही है. ओके, सी केस 1 में वी हैव ओनली सिंगल प्लेट. तो यहाँ पे प्लस प्लस डाल दिया हमने, चार्ज प्लस क्यू. तो देन कैपेसिटी विल बी इन दिस केस सिंपली Q by V, isn't it? बट इफ आई हैव अ न्यूट्रल प्लेट, एक अगर पॉजिटिव प्लेट के सामने मैंने एक न्यूट्रल प्लेट रख दिया तो क्या होएगा? इंडक्शन विल हैपन. ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज विल बी पुश्ड बिहाइंड, isn't it? ओके, तो यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे यू हैव नेगेटिव चार्ज. करेक्ट. अब देखो, यू नो दैट कि नेगेटिव चार्ज की वजह से ओवरऑल पोटेंशियल सिस्टम का रिड्यूस हो जाएगा, राइट? नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव V प्लस माइनस में मैटर करता है ना. V में प्लस क्यू लिखा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस क्यू लिखा तो नेगेटिव पोटेंशियल, राइट? तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल सिस्टम कम होगा. बट बाजू में पॉजिटिव चार्ज भी है तो वो फिर से बढ़ा देगा, समझा? बट वो थोड़ा दूर है इसलिए इतना ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, समझा? तो लेट्स से द पोटेंशियल रिड्यूसेस बाय 10, तो बट पॉजिटिव चार्ज अगेन इंक्रीज बाय 8. तो ओवरऑल रिडक्शन इज ओनली 2 का. समझ में आ रहा है क्या? ओके, बिकॉज पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, राइट? तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज लिटिल फार अवे. ओके, तो दिस विल इंक्रीज बट नॉट दैट मच. तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि पोटेंशियल कम ही हो रहा है. समझ में आ रहा है? बट बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज. समझ में आया क्या? तो अगर मुझे बहुत ज्यादा कम करना है, मतलब जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर 10 से कम हो रहा है तो ये 8 से वापस इंक्रीज कर रहा है. तो ओवरऑल रिडक्शन इज ओनली 2. टू मेक मैक्सिमम लॉस इन पोटेंशियल व्हाट वी कैन डू इज कि ये न्यूट्रल प्लेट तुम लगाओ सामने. ओके, बट उसको ग्राउंड कर दो, मतलब यू जस्ट ग्राउंड दिस. इससे क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज इज हेल्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव अट्रैक्शन. ओके, बट पॉजिटिव विल गो अवे, इट विल गो टू द जीरो पोटेंशियल ग्राउंड. अब यहाँ पे व्हाट इज द रिडक्शन? पूरा 10 का 10 रिडक्शन होगा. तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो. इफ यू हैव न्यूट्रल प्लेट सामने और ग्राउंड कर दिया तो मैक्सिमम लॉस इन पोटेंशियल होता है. ठीक है, लेट्स से लॉस इन पोटेंशियल इज सम माइनस V1. तो यू कैन से C dash in this case will be Q upon V minus V1, where negative potential has come because of the negative induction. समझ में आ रहा है क्या? And if I compare C dash and C, obviously we can say that C dash is high. तो capacity increases when you have a parallel plate design. समझ में आया क्या? ये हमको एग्जाम में लिखना होता है, अगर पूछा तो 1-2 मार्क का पूछ लेंगे. Any questions? What is the advantage of a neutral plate grounded? पोटेंशियल का डिक्रीज बहुत ज्यादा होता है, इससे कैपेसिटी विल इंक्रीज. इट्स अ थियरी क्वेश्चन. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आएगा? ठीक है, नाउ लेट्स डू द डेरिवेशंस. व्हाट इज द फर्स्ट वन? आई थिंक कैपेसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटी सीरीज पैरेलल करना है क्या? साथ में कर लेते हैं. ओके, सीरीज पैरेलल. थोड़ा टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम ले लेते हैं. ओके, तो सीरीज में यार डॉट डायग्राम दिस ऐसे कुछ 3 कैपेसिटर बना दिया है, बोला ये ग्राउंड किया है, यहाँ पे ऐसे रखा है, बट ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज V. ओके, सीरीज में क्या होगा कि चार्ज विल बी सेम. तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू आ रहा है तो यहाँ भी प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू. चार्ज विल बी सेम अक्रॉस ऑल कैपेसिटर. सीरीज में चार्ज सेम होता है बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. तो यहाँ पे इफ पोटेंशियल इज V1, this will be potential difference will be V2 here and potential difference V3 here. Correct? This is series का diagram and these capacitors are C1, C2, C3. So what we have they have asked if I replace this system by a single capacitor, इसको CS बोल दिया हमने और ऐसा सिस्टम बना दिया अगर मैंने, this is V only, then what is the value of CS? If you replace this by a single capacitor, what should be the capacity का value? Okay.
क्या बनेगा बताओ, क्या ये भी कर लेते हैं साथ साथ में क्या, तो रुको इसको खत्म करते हैं फिर आते हैं. ओके, कैन वी से दैट कि v is equal to v1 plus v2 plus v3 because potential will get divided. Okay, also we can say that by definition of capacity, what is capacity, c is equal to q by v, right? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं cs is equal to चार्ज प्लस q माइनस q होगा यहाँ पर, है ना. तो cs will be equal to q by v, right? है ना. एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि v is equal to v1 plus v2 plus v3, correct? And we can get v का value as q by cs. What is v1? It will be q by c1. This will be q by c2. This will be q by c3. q बाय बाय हो जाएगा. 1 upon cs is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3. बेसिकली रेसिप्रोकल को ऐड करना पड़ता है, एंड देन विद रेसिप्रोकल अगेन, दैट इज cs, है ना. सीरीज में रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक सीरीज में वो सीरीज का फॉर्मूला होता है, हाँ कैपेसिटी में सीरीज का फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो द रिलेशन इज वेरी सिंपल आई थिंक. चलो आ जाओ यहाँ पे देखो, पैरेलल में क्या होगा, डायग्राम विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. 3 कैपेसिटर ले लो. ओके, इसको लगा दो एक वोल्टेज डिफरेंस के थ्रू. दिस इज V, दिस इज ग्राउंडेड. ओके, C1, C2 एंड C3. सो व्हाट विल हैपन हियर इज कि अगर यहाँ पे चार्ज Q है, दिस विल बी Q1, this will be Q2 and this will be Q3, and here we can say कि Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. okay, and what is Q का value, Q1, Q is CV, right? तो C1V हो जाएगा, voltage is same for all of them. यहाँ पे C2V और यहाँ पे C3V आ जाएगा, and if I replace them by single capacitor, let's call इसको CP, तो that will be Q को इससे CPV लिख सकते हैं हम लोग, isn't it? तो ये VV कैंसिल हो जाएगा, यू गेट सिंपली CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, विच बेसिकली मीन CP इज समेशन ऑफ CI. तो सिंपल सा डेरिवेशन है, वेरी सिंपल. इफ दे गेट सब बोनस जैसा है, मतलब मिल गया तो, है ना. ऐसा डेरिवेशन आ गया तो ठीक, बाकी न्यूमेरिकल के तो इट इज यूजफुल ओनली. एनी क्वेश्चंस हियर, समझ आएगा. व्हाट इज द नेक्स्ट वन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक. ओके ठीक है, आ जाओ पहले विदाउट कर लेते हैं. ओके, तो वी विल से C for parallel plate without dielectric. ओके, तो टेस्ट ट्यूब का डायग्राम कुछ ऐसा है, मतलब ये 2 प्लेट्स रख दिया हमने ऐसे, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है. डिस्टेंस इन द प्लेट इज D and area of plate is A. This charge is plus Q, this is minus Q. You should understand कि बनाया ऐसे, बट एक्चुअल डायग्राम देखो ऐसा है कि प्लेट्स आर लाइक दिस, isn't it? प्लेट्स आर लाइक दिस, ऐसा कुछ. और ये जो एरिया ऑफ प्लेट है वो ये है, ये एरिया को हम एरिया ऑफ प्लेट बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस इन द प्लेट्स है, करेक्ट. एंड वी वांट टू नो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि कभी भी कोई कैपेसिटी पूछता है तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. कि V का आंसर हमेशा Q के टर्म्स पे आएगा, और Q by V इज अवर C का वैल्यू. समझ में आ गया. तो योर फोकस शुड बी ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्लेट्स, वो ढूंढना पड़ेगा अपने को, समझे. ऑल्सो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है ना. ओके, यू शुड नो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स इज एक्चुअली V, लेट्स से इट विल बी E into D, है ना. क्योंकि E, since you know that right, since E is minus dV by dx, correct ना. तो what is dV here, voltage difference, तो वो लिख दिया हमने. ओके, and dx is the distance in the plates. तो voltage will be, potential difference will be E into dx, है ना. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड गोस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, बराबर. ओके, अच्छा, बट ये E, what is this E?
इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, राइट? वो कैसे मिलेगा देखो, तो पहले ई निकालते हैं, ई बिटवीन द प्लेट्स, इसको यही निकालेंगे, चलो ई बिटवीन प्लेट्स। तो यू शुड नो दैट कि देयर आर टू प्लेट्स ना, एक पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पर और एक नेगेटिव प्लेट है यहाँ पर। इफ आई टेक एनी पॉइंट इन बिटवीन, पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड विल टुवर्ड्स राइट लाइक दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लेट? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड नेगेटिव प्लेट पे, नेगेटिव प्लेट जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स देता है ना, या अट्रैक्टिव फील्ड देता है इस तरफ, इट विल लाइक दिस, एंड अगेन द वैल्यू इज सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना होगा तो इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज बेसिकली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इट विल बी सिंपली q अपॉन a, तो ये लिख देंगे हम q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। समझ आया क्या? तो दिस इज योर रिलेशन नंबर 1, दिस इज योर रिलेशन नंबर 2। इफ यू कंबाइन बोथ द रिजल्ट्स, व्हाट डू यू गेट? क्या मिल जाएगा? Therefore I can say V is equal to q upon a epsilon naught, है ना, into d। एंड c का एक वैल्यू के लिए हमको q by v चाहिए, तो रीअरेंज कर लो टर्म और सिंपली मिल जाएगा c का वैल्यू है q by v which is a epsilon naught by d। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, ओके। हाउएवर द मोर इंटरेस्टिंग डेरिवेशन इज दिस, इफ इट इज पार्शियली फील्ड, partially filled कैपेसिटर। तो इसमें क्या बोला है कि अगेन सेम सिचुएशन कि ये दो प्लेट्स हैं और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन बीच में हमने क्या किया यहाँ पर, वी हैव कीप्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसा एक स्लैब रख दिया यहाँ पर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के हियर एंड दिस इज टी थिकनेस का। अभी बाकी जो पैरामीटर्स है वो सेम ही है, दिस एरिया इज ए एंड डिस्टेंस इन द प्लेट्स इज डी ओनली। ओके, इफ आई हैव टू शो यू अनदर व्यू, इट विल लुक लाइक दिस। देखो ये प्लेट्स है हमारे, ओके, यहाँ पे ऐसे दो प्लेट्स है और डायरेक्ट्रिक स्लैब है वो ऐसा कुछ है बीच में, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज टी and this is D, बराबर ना? ओके, तो एरिया ऑफ प्लेट एंड एरिया ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब इज सेम, सिर्फ थिकनेस अलग है, बस इतना ध्यान देना हमको। ओके, एंड पॉइंट्स टू बी नोटेड, सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड नो हियर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a dielectric is given by external field E will be, या इसको E के लिख सकते हैं या E नॉट लिख सकते हैं, whatever you want to write, it will be external field upon K, ठीक है। और एक्सटर्नल फील्ड वाली कितना है पीछे निकाला हमने, it was sigma upon epsilon naught K, और you can write Q upon A epsilon naught, ये पता होना चाहिए तो ये कर पाएंगे डेरिवेशन। और जैसे मैंने बोला, व्हाट इज द फोकस, इफ दे आस्क यू सी, ऑलवेज ट्राई टू गेट द वी, तो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बी नाउ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वी विल बी वी अक्रॉस टी द स्लैब प्लस वी अक्रॉस द रिमेनिंग पार्ट विच इज डी माइनस टी पार्ट, एंड वी का फॉर्मूला इज ई इंटू डी। तो ई किसका लेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्लैब का बात कर रहे हैं, तो ई के लिखेंगे इंटू टी प्लस, एंड दिस विल बी, दिस इज रिमेनिंग स्पेस, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, ओके, इंटू डी माइनस टी। समझ में आया क्या? वी का फॉर्मूला क्या है, इट इज वी इज ई इंटू डी, राइट, बट कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और क्या थिकनेस ले रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से लिया मैंने फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे जो टी पार्ट है उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई के, एंड बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो हमने पहले लिखा था। तो लिखो वैल्यूज डालते हैं, चलो, क्यू upon A epsilon naught K T plus Q upon A epsilon naught T minus T. Take all the things common. Q upon A epsilon naught common है, T by K plus D minus T. Okay, and rearrange the term to get C का value. तो C will be Q by V, which is A epsilon naught upon T by K plus D minus T.
That's the formula. And one more thing that you should know, this formula can be extrapolated. मतलब अगर मल्टीपल स्लैब्स है ऐसे, ओके, जैसे ये T1 थिकनेस K1 है with thickness T1, K2 है with thickness T2, and this entire thing is D. So we can write C का formula as A epsilon naught upon T1 by K1 plus T2 by K2. ऐसे ये term we can keep on adding. Similarly, plus D minus T1 minus T2 and so on. ये term सब बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओके. What else? एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, ये एक्चुअली काफी पूछा हुआ है. कैपेसिटर में एक्चुअली दो डेरिवेशन ज्यादा पूछते हैं, सीरीज पैरेलल एंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर. दीज टू डेरिवेशंस आर आस्क्ड मोर. ओके, क्या है एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर? तो यू शुड नो दैट. यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन ये है कि लेट्स से if the capacitor is fully charged, let's say charge is capital Q. Okay, at this moment we know that Q should be written as C into V, where C is capacity and V is potential difference at that moment, right? So as you increase the charge, तो क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा. C is something which is constant. Is making sense? Okay, तो ये है on fully charged. ठीक है, तो नाउ ये स्टेज पे क्या एनर्जी रहेगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आर पे जाके डी आर चेंज किया तो व्हाट इज द वर्क डन, देन वी कैन इंटीग्रेट ऑल दोस थिंग्स. वही करेंगे. विल से लेट्स से इंटरमीडिएट स्टेज वेयर कैपेसिटर इज नॉट फुल्ली चार्ज. ओके, लेट्स से इट इज थोड़ा सा चार्ज किया है इसको, इसमें इस टाइम पे चार्ज सिर्फ Q है एंड वोल्टेज इज सम स्मॉल v at this moment, okay, at certain time t we can say, okay, and at this moment I can therefore write Q is equal to CV. C is constant, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, जो पहले था वो अभी भी रहने वाला है, चेंज सिर्फ ये दोनों हो रहा है बस. ओके, एंड ये स्टेज पे टू ऐड, या यू कैन से फॉर एडिंग स्मॉल चार्ज dq, या वी कैन चार्ज बाय dq उसको, ठीक है, इस पे dq चार्ज और ऐड किया तो कितना वर्क होगा. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन इलेक्ट्रिसिटी? यू शुड नो दैट कि वर्क डन इलेक्ट्रिसिटी इज, है ना, चार्ज v इंटू क्यू, राइट, है ना. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज कितना ऐड किया हमने, dq, और पोटेंशियल इस टाइम पे कितना था, v, तो v dq इज द वर्क डन. इलेक्ट्रिक वर्क डन इज ऑलवेज q इंटू v. ओके, व्हाट इज v का वैल्यू, Q by C. स्मॉल वर्क डन मिल गया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल वर्क डन इन चार्जिंग, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम 0 to Q, दैट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to Q. क्या आएगा भाई, क्या आएगा, Q dQ C, Q dQ upon C, 1 upon C बाहर, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ, Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालने के बाद Q स्क्वायर बाई 2C. ठीक है, ओके, एंड इफ यू पुट दिस वैल्यू, अगर ये Q को CV डाल दो क्या मिल जाएगा, यू विल गेट हाफ CV स्क्वायर सिंस कैपिटल Q इज C इंटू V. तो दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग सीरीज कनेक्शन चार्ज इज सेम, ड्यूरिंग पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज सेम. तो कनेक्शन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कंपैरिजन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. समझ में आया क्या? Also you should know that if battery is connected to the capacitor, voltage will be always same, right? Okay, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल होता है. If battery is disconnected from capacitor, तो voltage potential difference will always vary, but Q will be same. तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला काम का है, नहीं है तो ये फॉर्मूला कनेक्ट काम का है, सीरीज है तो ये फॉर्मूला काम का है, और पैरेलल है तो सीरीज का काम का है. समझ में आया? You have to see कि which formula is more useful at that particular example. समझ में आया? Okay, और क्या है? ठीक है, एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस करते हैं. वैन डी ग्राफ जनरेटर, एटलीस्ट काम का बात सुन लो, मतलब वी नॉट डिस्कस टू मच इन डिटेल में, बट एटलीस्ट एग्जाम में लिखने लायक या क्या डायग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनो. ओके, वैन डी ग्राफ जनरेटर में देखो, यू कैन रेफर टू टेक्स्ट बुक डायग्राम.
प्रॉपरली, मतलब यहाँ पे ऐसे डोम स्ट्रक्चर होता है, ओके, एंड देन देयर इज अ मैकेनिज्म, यहाँ पे कुछ कोम्स रहेंगे, ओके, इसको C1 C2 बोले थे फिलहाल के लिए, एंड देयर इज बेल्ट विच इज रोटेटिंग ऑल द टाइम। तो ये बेल्ट चल रहा है, मतलब ठीक है, ये रोटेट हो रहा है लाइक दिस, ओके। तो ये C1 कोम क्या है, बताए कोम में क्या होता है कि वी हैव शार्प पॉइंट्स, राइट। शार्प पॉइंट का पर्पस क्या है, इफ यू शुड नो दैट फॉर अ कांस्टेंट वोल्टेज सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इजंट इट। मतलब अगर हमने एरिया रिड्यूस कर दिया, आर रिड्यूस कर दिया सरफेस का, तो वहां पे सरफेस चार्ज बहुत बढ़ जाता है, राइट। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, बहुत कम चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज है, थोड़े स्पेस में आ जाएगा तो सराउंडिंग एयर बिकम्स कंडक्टिंग, समझा गया। इसको बोलते हैं हम लोग कोरोना डिस्चार्ज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज, ठीक है ना। यही सेम कहाँ पे होता है, मतलब इवन जब टू क्लाउड्स टकराव फ्लाई, व्हाट विल हैपन, बहुत सारा चार्ज एक जगह पे आता है, राइट, तो इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग थ्रू एयर, समझ में आ रहा है क्या। वैसे कुछ यहाँ पे हो रहा है, इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं अपन, ओके। तो ये जो कोम्स है, देयर इज अ मैकेनिज्म टू ऐड कंटिन्यूअसली सप्लाई चार्ज टू दिस कोम C1। यू कैन हैव अ बैटरी और सिस्टम जहाँ से बार बार चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी से हम चार्ज सप्लाई करते जा रहे हैं C1 पे, और C1 पे बहुत सारा चार्ज, क्योंकि इसके नीडल्स आर वेरी शार्प, तो बहुत सारा चार्ज नीडल पे आ जाएगा, एंड देन कोरोना डिस्चार्ज विल हैपन। उससे क्या होगा कि जो बेल्ट है उसको चार्ज मिल जाता है, समझा। तो बेल्ट वो चार्ज को ले लेगा, ठीक है, कंडक्टिंग बेल्ट है और ये घूमते रहता है, तो चार्ज फिर यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे घूमने की वजह से ये चार्ज को लेकर यहाँ पे पहुंच जाएगा। नाउ यू मस्ट हैव सीन कि अपना जो बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उस पर वी कीप ना दोस लाइटनिंग रॉड्स, ठीक है, वो भी शार्प ही होता है ना, मतलब इससे वेरी पतला रॉड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, कि जब चार्ज जहाँ डिस्चार्ज हो रहा है तो वो लाइटनिंग रॉड पहले आएगा, राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। वैसे ही कुछ यहाँ पे सेम मैकेनिज्म हैपन कि जो चार्ज यहाँ पे आएगा फट से इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और जब चार्ज इसके ऊपर आएगा तो दे विल गो इनटू द इनर डोम ऑफ दिस वैन डी ग्राफ जनरेटर, समझे क्या। एंड देन देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी व्हिच आई थिंक यू हैव डन इन मेंस, इफ आई गिव यू टू शेल्स एंड आई कनेक्ट देम, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, चार्ज विल ऑलवेज गो ऑन द आउटर सरफेस। तो यहाँ पे तो कितना ही चार्ज डाल, वो हमेशा कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे जाएगा, समझा ना। कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज ऑलवेज गो ऑन द आउटर सरफेस, तो यू कीप एडिंग चार्ज फ्रॉम हियर, तो वो चार्ज पर जमा हो के क्या हो गया, इनर सरफेस में जाएगा, फिर इनर से आउटर सरफेस में चले जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ऐसे बहुत देर तक करोगे तो क्या होगा कि जो आउटर सरफेस है वहां पे बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा, वेरी हाई पोटेंशियल, इनर सरफेस में पोटेंशियल बहुत कम रहेगा, राइट। तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर 10⁵ 10⁵ तक जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आ रहा है क्या। इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी यूज्ड वेयर, इट कैन बी यूज्ड फॉर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब तुम्हारे बुक में क्या किया होगा, यहाँ पे एक और ट्यूब डाल दिया है, बेसिकली दिस ट्यूब इज अ डिस्चार्ज ट्यूब, डी लिखा होगा वहां पे। इसमें क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में से वी आर क्रिएटिंग आयंस, ठीक है, और वो आयंस, जब वो आयंस को ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, व्हाट विल हैपन, दे विल गेन हाई काइनेटिक एनर्जी, राइट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज Q into V, तो if V is high, all the charges will be accelerated, and this accelerated charge is then put on some target, we can use it to break some atoms and all those things, है ना, वो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन और all those things we can do, समझ में रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है, यूसेस है, वो देख लो, और बाकी जो वर्किंग है यू कैन ऑलवेज राइट, डायग्राम शुड बी एज पर टेक्स्ट बुक। तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस थोड़ा सा ब्रीफली, ओके, समझ में आया फंडा क्या है इसका। दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, एक कोरोना डिस्चार्ज का, दूसरा क्या बोलते हैं, व्हेन चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर इट ऑलवेज गो टू आउटर सरफेस, वो अंदर रुकेगा नहीं, समझा गया, ठीक है, हो गया भाई, खत्म।